Hello everyone, this is Megha from BR Global School. This is our second lecture of Pol Science Chapter 4 Electoral Competition. So let's start. Today's our topic is what is our system of election, कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शंस का इंडिया के अंदर एटलीस्ट. कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? ये हाँ हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शंस जो यहाँ पर रेगुलर होते हैं. टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक ऑफ हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. लोकसभा and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the terms of the elected representative come to an end. वो कितने टाइम के लिए काम करते हैं? 5 years के लिए. और 5 years के बाद क्या होता है कि उनका टाइम पीरियड जो है वो एक बार ख़त्म हो जाता है. After 5 years, the term of the elected representative comes to an end. The Lok Sabha और विधान सभा stand dissolve. तो ये क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाती है. Elections are held in all consequences at the same time. इट मीन्स विद इन अ वीक के अंदर या कुछ चेंजेस टाइम की रहती है, उसी से लगभग सेम टाइम पर सब जगह इलेक्शंस करवाए जाते हैं. और वो इलेक्शंस क्या कहलाते हैं? जनरल इलेक्शंस कहलाते हैं. समटाइम्स इलेक्शन आर हेल्ड इन ओनली वन कॉन्सिक्वेंस. जब किसी नॉमिनी की रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है और उसकी सीट या उसके रेजिग्नेशन से उसकी सीट वेकेंट हो जाती है, तो उस सीट के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो बाय इलेक्शन कहलाते हैं. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हर 5 साल में होंगे, लेकिन बाय इलेक्शंस किसी भी टाइम पर करवाने पड़ सकते हैं. इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो है मेनली वो किस पर फोकस किया जाएगा? जनरल इलेक्शंस पर. Electoral consequences. You read about the peoples of Haryana electing 19 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? क्या सभी पर्सन इन 90 MLAs के लिए वोट करते हैं? You perhaps know that this is not the case. In our country we follow an area-based system of representation. तो यहाँ पर कैसे assemblies के elections रहते हैं? Area-based. The country is divided into different areas for the purpose of elections. Country को purpose of elections की वजह से बांट दिया जाता है. These areas are called electoral consequences. ये जो areas बनते हैं इसको electoral consequences कहा जाता है. The voters who live in that area elect one representative. तो वो किसका करते हैं election? एक representative के लिए. For Lok Sabha elections, for Lok Sabha elections, the country is divided into the 543 consequences. The representative elected from each consequences is called the member of parliament. वो member of parliament MPs कहलाएंगे. जो assemblies के elections की बात कर रहे थे वो MLAs थे. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. हमारा जो constitution है वो equality पर based है. One person, one vote, one value. One of the feature of a democratic इसमें क्या है कि equal value तो रहेगी. That is why our constitution require for each consequences should have a roughly equal population. तो equal population के accordingly इनको divide कर दिया जाता है. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly consequences. In this case, the elected member representatives is called the member of legislative assembly or the MLA. Each parliament consequences has within it several assembly consequences. The same principle applies for the panchayat and municipal elections. एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूरल्स के अंदर पंचायत रहती है और सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं. ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू द सेवरल वार्ड्स में बांट दिया जाएगा एंड दैट आर लाइक consequences. और each ward elect one member of the village of the urban local और urban local bodies के लिए. Sometimes these consequences are counted at seats. कई बार इन्हें seats के लिए count किया जाता है. For each consequence represent one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidate of Lok Dal won in 60 assembly consequences. I hope it's clear. In the state and thus Lok Dal had 60 MLAs in the स्टेट असेंबली. सो उनके कितने MLAs बने? 60 MLAs वहाँ पर चूज़ किए गए. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेस. रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि
Our constitution entitles every citizen to elect his her representatives and to be elected as representative. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को कहा है कि वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हो सकते हैं इलेक्ट और अपना रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हाउएवर वर worried that in an open electoral competition certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. आपको पता है कि अनटचेबिलिटी थी तो वो शुरू से वरीड थे कि जो लोग वीकर सेक्शन से हैं उनको तो कोई भी इलेक्शंस में खड़े होने नहीं देगा या उन्हें कोई भी सीट शायद ना मिले. दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है और कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट एंड विन इलेक्शन, ना ही उनके पास ज़्यादा अपने कॉन्टेक्ट्स होंगे और ना ही वो इलेक्शंस को जीत सकेंगे लोगों की तरह अगेंस्ट अदर्स. दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल may prevent them from winning election, और जिनके पास रिसोर्स होंगे हो सकता है वो उन्हें जीतने भी ना दें. If that happens, ऐसा होता है, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. तो it means हमारी जो population होगी ये weaker section की ये तो बहुत ही deprived हो जाएगी. That would make our democracy less representative and less democratic. तो ये हमारी democracy को क्या कर देगा, लेस रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा और लेस डेमोक्रेटिक कर देगा. सो द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द वीकर सेक्शन. तो उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्व सीट्स का सिस्टम रखा. सम कॉन्सिक्वेंसेज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इन द SC रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेज ओनली सम हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड द इलेक्शन. जो लोग SC की सीट के लिए होंगे उनका खुद का शेड्यूल कास्ट का होना ज़रूरी है, वो तभी इलेक्शंस पे खड़े हो सकते हैं. सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर ST. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribe as on 1st September 2012. This number is in proportion to their share इन द टोटल पॉपुलेशन. उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए कुछ शेयर उनका ये रखा गया है. थस द रिजर्व सीट फॉर SC एंड ST डू नॉट टेक अवे द लेजिस्लेट, यानी लीगल शेयर रखा गया है उनका सोशल ग्रुप में. दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू द अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल. अब बाद में ये सिस्टम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है. इट मैनी स्टेट्स इन रूरल यानी पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस local bodies are now reserved for the OBCs यानी other backward classes as well. However, the proportion of seat reserve varies from state to state. तो ये क्या करता है, वेरी करता है, मीन्स अलग अलग रहती हैं हर स्टेट से स्टेट की. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women candidate. यानी 33% सीट्स जो हैं वो वुमेंस के लिए भी रिजर्व की गई हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में ओनली लोकल इलेक्शंस के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट कैसे होती है? वंस द कॉन्सिक्वेंसेज आर डिसाइडेड. जब कॉन्सिक्वेंसेज डिसाइडेड हो जाती हैं तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है, डिसाइड करना कि हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. ये जो डिसीजन है ये क्या होता है, लास्ट डे तक भी इसको लेफ्ट नहीं किया जा सकता. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. ये इलेक्शन से पहले ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. तो इस लिस्ट को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल रोल कहलाता है. इट्स कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट और कॉमन आम भाषा में सिर्फ वोटर लिस्ट भी कहा जाता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट is linked to the first condition of democratic election. तो ये क्या है, हमारा पहला स्टेप है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का. एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव. आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी पर बेस्ड है. सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी को कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने. चैप्टर 1 में भी से रीड कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग को लेकर. इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट हैव वन इक्वल वैल्यू. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. किसी को भी वोट देने से रोका नहीं जा सकता जब तक प्रॉपर एक रीज़न क्यों ना हो. डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. सम आर रिच, सम आर पुअर,
some are highly educated and some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. चाहे आप रिच हैं, चाहे पुअर हैं, एजुकेटेड हैं, नॉट एजुकेटेड हैं, तो भी आपको क्या है, इलिटरेटेड होने के बाद भी आपके पास इक्वल राइट रहेगा, सबको अपनी बात रखने का राइट है. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव, किसको वोटिंग राइट है? 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. सभी को वोटिंग राइट मिलेंगे बिना इस बात को देखे हुए कि वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, किस जेंडर का है. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड, वो लोग जो उनका क्या है कि क्रिमिनल्स हैं, ये अनसाउंड माइंड के हैं, बी डिनाइड द राइट टू वोट. उन्हें किससे मना किया जा सकता है? उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, बट ओनली इन द रेयर सिचुएशन. ऐसा सिर्फ रेयर सिचुएशंस में ही होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ द ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट. तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सभी वोटर्स लिस्ट के अंदर सभी वोटर्स का नाम दे. एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडिड टू द वोटर लिस्ट. कि अगर आप इसी साल 18 साल के हुए हैं आपकी एज, तो वो भी आपको भी वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा. नेम ऑफ दोज हु कैन मूव आउट ऑफ अ प्लेस, जो लोग एक जगह को छोड़कर चले जाते हैं, और दोज हु आर डेड और डिटेक्टेड, सॉरी, तो जो पर्सन्स की डेथ हो चुकी है उनको भी डिलीट कर दिया जाता है उसमें से, लिस्ट में से. अ कंप्लीट रिविजन ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स. ये लिस्ट हर 5 सालों में बनती है. दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट. और ये लिस्ट हर साल ये देखा जाता है कि ये अप टू डेट लिस्ट है. In the last few years, a new system of election photo identity card, जिसको इपिक कहा जाता है, has been introduced. उसे इंट्रोड्यूस किया गया है. The government has tried to give this card to every person or the voter list. तो गवर्नमेंट क्या करती है? सभी वोटर्स को ये लिस्ट देती है दैट वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, दे कैन गो आउट फॉर अ वोट. तो हम लोग वोटिंग कार्ड लेकर जाते हैं वो इलेक्शंस में, किसके लिए? वोटिंग करने के लिए. सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स. इससे क्या होता है कि कोई किसी और के नाम का वोट नहीं डाल सकता. बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग. लेकिन अभी भी ये कार्ड जो है वो कंपल्सरी नहीं है फॉर वोटिंग. द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड, आधार कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस. ये भी ले जाकर आप अपना वोट कर सकते हैं. रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डेक्लरेशन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. कुछ गाइडलाइंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह तरफ से. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डेक्लरेशन. हर कैंडिडेट को लीगल डेक्लरेशन देनी होगी. वो क्या होगी? गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. क्या कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस है? डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी. क्या कैंडिडेट, जो हम रिप्रेजेंटेटिव के लिए कैंडिडेट चूज़ कर रहे हैं, उसको देखा जाएगा कि उसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या उसका हिज और हर फैमिली डिटेल्स उसकी, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है. दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड टू द पब्लिक. ये पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है. दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वोटर टू मेक देयर डिसीजन. इससे क्या होता है कि वोटर के लिए अपना डिसीजन लेना थोड़ा ईजी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, कि क्या कैंडिडेट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट. अभी हमने वोटर लिस्ट को डिस्कस किया. अब हम देखेंगे कि कैसे नॉमिनीज़ चुने जाते हैं. वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. कि पर्सनस के ऊपर कोई भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा. दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड. एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी कम इन अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. आप वोटर भी हो सकते हैं और आप कैंडिडेट्स भी बन सकते हैं इलेक्शन के लिए. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट इज़ द मैक्सिमम एज इज़ 25 ईयर्स. एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, वाइल द एज ऑफ अ वोटर इज़ 18 ईयर्स एंड अबव. देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा. और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं क्रिमिनल के ऊपर, बट दीज अप्लाई इन द वेरी एक्सट्रीमली
extreme cases. Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support. जो कैंडिडेट होता है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है उसे पार्टी सपोर्ट देती है, अपना सिंबल देती है. पार्टी नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. जिस पार्टी से वो नॉमिनी हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? पार्टी टिकट, कि मुझे उस पार्टी की टिकट मिल चुकी है. एवरी पर्सन हु विशेज़ टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. उसे क्या फिल करना होता है? एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है. एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. और उसे क्या करना होता है? कुछ मनी डिपॉजिट करनी होती है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए. ये फॉर्म दिखा रखा है इलेक्टोरल का, इसे आप बुक में अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा. Come to our next point, that is election campaign. The election campaign, the main purpose of the election is to give people a chance to choose a representative. तो पीपल्स को क्या मिल रहा है? एक फेयर चॉइस मिल रही है. द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर. वो अपनी गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल सोच सकते हैं, उनके पास अपने थिंकिंग स्किल है जिससे वो डिसाइड कर सकते हैं कि हु इज़ बेटर, कौन सा उनके लिए बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, और विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट, कि कौन सी पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है, और व्हाट इज़ द गुड पॉलिसीज़. एंड दैट इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेरिजन. इन आवर कंट्री सच कंपेरिजन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड. ये कितने टाइम का रहता है? जो ऑफिशियल पीरियड है वो 2 वीक का है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. डेट ऑफ पोलिंग और जो फाइनल डिसाइड होता है कि कौन सा कैंडिडेट रहेगा उसके बीच का पीरियड होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर. इस बीच में वो अपने वोटर्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस करते हैं इलेक्शन मीटिंग्स को. पॉलिटिकल पार्टीज़ मोबिलाइज करती हैं अपने सपोर्टर्स को. This is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates. उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इलेक्शन, सारा जो न्यूज़पेपर या जो भी आपको देखेंगे सब तक आपको इलेक्शन स्टोरीज मिलेंगी, डिबेट्स होंगे. बट इलेक्शन कंपेरिजन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली. लेकिन ये ऐसा 2 वीक्स का नहीं होता. जैसे मैंने आपको लोकदल में पढ़ाया था, वो लास्ट नियर बाय 2 ईयर से काम कर रहे थे इलेक्शंस के लिए. इसी तरह से पीपल्स जो हैं वो लोगों को बहुत पहले से ही इलेक्शन को लेकर अपने पर्सन से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, वोटर से. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. और वो बहुत पहले से ही ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं. इन इलेक्शन कंपेरिजन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन और सम बिग इश्यूज़. वो सबसे पहले किस पे ध्यान देते हैं कि क्या बिग इश्यूज़ चल रहे हैं. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी और दैट बेसिस. इसी बेसिस पर वो लोगों से अपीयर करते हैं, अपील करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर करेंगे. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन. द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ. कांग्रेस ने कौन सा सबसे मेन स्लोगन दिया? गरीबी हटाओ का. इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 द पार्टी प्रॉमिस टू द रिटेंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. उन्होंने कहा कि हम देश से गरीबी हटाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे. सेव डेमोक्रेसी, ये स्लोगन दिया गया जनता पार्टी की तरफ से. इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन द 1977 द पार्टी प्रॉमिस अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लाइबिलिटीज. द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर. इन द वेस्ट बंगाल, ये स्लोगन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में यूज़ किया गया था, हेल्ड इन द 1977 में. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of Telugu's Desam party in Andhra Pradesh assembly election in 1983. ये कुछ फेमस स्लोगन्स है जो लीडर्स ने दिए हैं. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कंपेरिजन द वे दे वांट टू. इसमें क्या है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कंपेरिजन में काम कर सकते हैं. बट इट इज़ sometimes necessary to regulate comparison to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete. पर ऐसा होना चाहिए कि सभी पर्सन को इक्वल चांस मिले compete करने का. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voter. अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारा इलेक्शन लॉ कि आप किसी को भी कोई भी रिश्वत नहीं दोगे, ना ही उन्हें थ्रेटन करोगे.
अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, किसी भी पर्सन को आप कास्ट और रिलीजन को लेकर अपील नहीं कर सकते वोटिंग की। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए इलेक्शन कमीशन के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्सिक्वेंस इन द असेंबली इलेक्शन, कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट का यूज़ नहीं करेंगे। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर ऐसा कहीं भी पाया जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कोर्ट उसकी इलेक्शंस की टिकट को वापस ले सकती है, चाहे उसे इलेक्टेड का क्यों ना पास में मिल गया हो। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election commission. According to this, no party or candidate can use a place of worship for election propaganda. इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा जाएगा कि आप इलेक्शन कंपेरिजन के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल या रिलीजियस जगह का यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ करना है, एयरक्राफ्ट ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कि इसके बाद इलेक्शन अनाउंस होने के बाद किसी भी जगह की वो शिलान्यास लाइक कहीं भी स्टोन नहीं रखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई भी ऐसा बिग पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, ना ही कोई ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ का कुछ भी लेकर कोई भी ऐसी बिग अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यू हैव टू स्टे एट होम, prepare notes according to the topic. Thank you so much.